Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandit. So today we are going to give our reaction on informative content. Yes. And this is the man who built India. Yeah. And this is season 1 episode 1, Devil in Disguise. And this video published by Convey by Finnovations. Okay. So this is actually like Abhay said, this is informative content Something and related to it's historical a historical kind of content. का कुछ content है, Yeah, yes. and I guess it is related to that अंग्रेजों के time का ज़माने का कुछ यहाँ पे, incident. they have So I'm guessing they have mentioned that East India Company something, right, comes to India to find the opportunity in trade. trade. So maybe it's a good thing that we should know. Already a lot of the We things knew we that, know. a We know, lot of we have things, read in the yeah. history, but for whoever is preparing for examination and all, for them it will be informative or knowledge kind of thing, and Knowledge for us thing. just information, and it's good Yeah. to know and refresh our mind as well. Yeah, actually, it is always good to have information about India, ancient India, basically, and how our India got affected by the foreigners. Yes. In the name of that doing business from the East India Company, yes. we actually allowed them to come to India for trading Right. purpose. But after And that, they that was betrayed. the They betrayed us, right? That was the big mistake for us, and Yes, they exactly. betrayed. They took that opportunity, advantage. Yes, that they have taken opportunity that and advantage. started ruling India. So And that was very bad. उसके ऊपर हमारे देश में भी बहुत गद्दार थे, तो Of उन course. लोगों का रास्ता और इजी हो गया. हाँ, एक इतना सिंगल हमें पर्सन से पता नहीं है. हो सकता है, Correct. राइट. बट let's Let's watch see. this video and Yes. then we can talk more about More this. about this. This topic is very devastated. Like it's very vast, and we can talk more and more like throughout the day. So let's get started first with the video, and then we will talk more about that. But उससे पहले if you're new to this channel, please do subscribe and also please click on the notification bell. Yes, and also please follow us on Instagram. Yeah, तो चलो शुरू करते हैं. Yes. Okay. Based upon some research. It's a documentary, right? So. Okay. स्पाइसेस यूरोप की एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी थी. एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया स्पाइसेस का एक बहुत बड़ा सोर्स थी. इन एशियन कंट्रीज के साथ स्पाइसेस की ट्रेडिंग करने के लिए जॉन वॉट और जॉर्ज वाइट ने मिलकर द ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत की. बाद में और मर्चेंट्स कंपनी से जुड़े और 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी को परमिशन दी और कंपनी का नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया. उस टाइम डच, जो कि हॉलैंड से थे, यानी आज के नीदरलैंड से, उनका आज के इंडोनेशिया पर कब्जा था. इसलिए स्पाइसेस की ट्रेडिंग करने के लिए डच ट्रेडर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ट्रेड वॉर्स होने लगे. और इन वॉर्स के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ भी नहीं बचता था. जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका सल्यूशन मिला और सल्यूशन था भारत. They took that opportunity. इंडिया से मतलब इतना सब चीज एक्सट्रैक्ट कर लिया मतलब उस टाइम. The man who built India. Devils in disguise. Appropriate this name, right? साल 1498 में जब पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को द गामा इंडिया आए, तब यूरोप से इंडिया आने का सी रूट लाइमलाइट में आया. तब इंडिया एक बहुत वेल्दी कंट्री थी. लग्जरी गुड्स, हाई क्वालिटी फैब्रिक्स, हाई क्वालिटी स्पाइसेस, ज्वेलरी, इनका मानो इंडिया एक खजाना था. और यूरोपियंस के लिए इंडिया सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, जिसमें एंडलेस पोटेंशियल था. 24 अगस्त 1608 इस दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी समंदर के रास्ते सूरत के जरिए इंडिया पहुंची. जल्द ही किंग जेम्स फर्स्ट ने अपनी एक टीम मुगल एम्परर जहांगीर के पास भेजी. उस टाइम मुगल्स का 70% साउथ एशिया पर कंट्रोल था, जिसमें आज का भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश आता है. ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुल हुई, जिसके चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया और इंग्लैंड के बीच ट्रेडिंग करने के एक्सक्लूसिव राइट्स मिले. जल्द ही उन्हें सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खड़ी करने की भी अनुमति मिली. और वहीं दूसरी ओर साउथ इंडिया में भी विजयनगर एम्पायर ने उन्हें मद्रास में फैक्ट्री खड़ी करने की अनुमति दी. बी इट एनी बिजनेस,
आपको बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पैसों की ज़रूरत थी और यहाँ पर उनके काम आए दो व्यक्ति, जिनमें से एक थे सेठ मानिकचंद। सेठ मानिकचंद इतने ज़्यादा अमीर थे कि उनके सामने आज के इलॉन मस्क और जेफ बेजोस की संपत्ति भी कुछ भी नहीं थी। उनके पास 1000 बिलियन पाउंड्स की संपत्ति थी। कुछ ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के अनुसार पूरे इंग्लैंड के बैंक्स के पास जितना पैसा था उससे भी ज़्यादा पैसा सेठ मानिकचंद के पास था। अगर हम सिर्फ उनके लैंड की बात करें तो अनडिवाइडेड बंगाल यानी आज का आसाम, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की आधी लैंड उनके पास थी। ही ओन्ड half of that. Fateh Chand was the scion of the family, and even before the British came here, they were already a lot into businesses. Typical Marwari family. Now, when the East India Company came here, they did have a lot of original British capital, which was partly private and partly of the crown itself. But when they came here, sometimes there were gaps to be filled. Some of the gaps in terms of finance, funding, or let's just broadly say capital, had to be filled in, and those gaps were filled up by people here, by organizations here at that time, and one of them happens to be the Jagat Seth family. सेठ मानिकचंद के पिता हीरानंद साहू राजस्थान के नागौर से थे। वहाँ से वो पटना गए और उन्होंने अपना सॉल्ट पीटर का बिजनेस शुरू किया। सॉल्ट पीटर गन पाउडर बनाने में काम आता है। इंडिया का जो सॉल्ट पीटर था उस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड में था। इसके पीछे दो वजह थी। पहली उसकी सुपीरियर क्वालिटी और दूसरा यूरोप में चल रहे वॉर टाइम की वजह से उसकी बढ़ी हुई डिमांड। उन्होंने तब के किंगडम्स जैसे कि मुगल्स के साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लोन देना शुरू किया। विलियम डेलरिम्पल की बुक दी एनार्की के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेठ मानिकचंद से 20 साल के लिए लगभग हर साल 4 लाख रुपीस बोरो किए थे। A message is received by Robert Clive from a man called the Jagat Seth, the banker of the world, the richest banker in India, who's been made a fortune from taking commissions from the tribute which the Nawabs of Bengal would send every year to Delhi. बहुत पैसा था, बहुत लोग सेठ invest भी मानिकचंद करवाए। मुगल्स के लिए रेवेन्यू रिमिटेंसेस कलेक्ट करने का काम करते थे। एक्सचेंज रेट भी वही डिसाइड करते थे, लेंडिंग भी वही करते थे। एक तरह से वो उस टाइम की एक सेंट्रल बैंक की तरह काम करते थे। अपनी मेहनत और काबिलियत के चलते सेठ मानिकचंद ने बंगाल को हाईएस्ट रेवेन्यू पेइंग रीजन बनाया। इससे खुश होकर मुगल्स ने उन्हें जगत सेठ की पदवी दी, जिसका मतलब होता है पूरी दुनिया के बैंकर। इट वॉज अ फिटिंग ट्रिब्यूट। Jagat Seth is a big part of India's economic history. You know, actually it is a Marwari family, it's Chand family originally, and at that time the Mughal ruler Muhammad Shah, he granted them the title of Jagat Seth, and that whole family came to be known as Jagat Seth. मानिकचंद और उनकी अगली जनरेशन ने अगले 50 सालों तक फाइनेंशियल मार्केट पर राज किया। लगभग हर बड़े शहर में उनके ऑफिसेस थे, जो कि बिल्कुल आज के बैंक्स की तरह थे। बंगाल के नवाब हो, ब्रिटिशर्स हो या फिर मुगल्स, अपना पैसा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए वो जगत सेठ के इन ऑफिसेस का ही इस्तेमाल करते थे। उस टाइम यानी 17th सेंचुरी में भी जगत सेठ के इन ब्रांचेस के बीच एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम था, बिल्कुल मैसेंजर्स की तरह। जगत सेठ अपने बिजनेस में बहुत माहिर थे, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी वीकनेस थी, वो किसी के भी प्रति लॉयल नहीं थे, अपने किंगडम के प्रति भी नहीं। वो उन सबके थे जो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट देते थे, और आगे इसी चीज़ ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। नए भारत को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे भारत के अपने क्रिएटर्स और लर्नर्स। एक प्लेटफॉर्म जो हम सभी को, हमारी कम्युनिटी एक साथ लाने में हेल्प कर रहा है, वो है कॉस्मोफीड। इंडिया में बना हुआ ये प्लेटफॉर्म डिजिटल क्रिएटर्स को कई सारे ऑप्शंस देता है जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप एक्सक्लूसिव फ्री चैनल शुरू कर सकते हो, और उस फ्री चैनल में भी आप कुछ कंटेंट पेपर व्यू के बेसिस पर रख सकते हो। साथ ही आप एक फुल्ली पेड कम्युनिटी भी बना सकते हैं और एक स्टेबल इनकम कमा सकते हैं। अगर आप एक ट्रेनर, एजुकेटर या मेंटर हैं तो आप अपने कोर्सेज भी यहाँ लॉन्च कर सकते हो, और उसके साथ ही रियल टाइम अर्निंग यहाँ पर आपको मिलती है। आपको मंथली या वीकली वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, और इस पे आउट के लिए भी आपको कोई कमीशन देने की ज़रूरत नहीं होती। कॉस्मोफीड पर हम अपनी खुद की कम्युनिटी लॉन्च कर चुके हैं और हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। अगर आप भी एक क्रिएटर या बिल्डर है तो अपनी कम्युनिटी आप यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। इसके साथ ही कॉस्मोफीड क्रिएटर्स के लिए एक मेगा गिव अवे दे रहा है।
जिसके लिए आपको कॉस्मोफिट को डाउनलोड करके अपनी एक कम्युनिटी वहाँ पर बनानी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल या कॉलेजेस के फ्रेंड्स की कम्युनिटी बना सकते हो। अगर आप एक हाउस वाइफ है तो आप सोसाइटी की कम्युनिटी बना सकते हैं। और जो भी क्रिएटर 13 मई तक सबसे बड़ी कम्युनिटी क्रिएट करेगा उसे पहला प्राइज मिलेगा 1 लाख रुपीज़ का। इसके साथ सेकंड प्राइज है 50,000 रुपीज़ और थर्ड प्राइज है 25,000 रुपीज़। विनर के नाम कॉस्मोफिट के ट्विटर अकाउंट पर 13 मई तक पब्लिश किए जाएंगे। Okay, so back to history. वो पोर्तुगीज़, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने लगे ताकि उन पैसों की मदद से वो आसानी से छोटे मोटे किंगडम्स को हरा सके। और फिर ऐसा करके जगत सेठ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने लगे। उसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन जल्द ही मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टैक्सेस को लेकर अनबन होने लगी, क्योंकि मीर कासिम ने सारे फॉरेन ट्रेडर्स पर 9% की ड्यूटी लगाई, जिसे देने से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया। मीर कासिम को ये बर्ताव पसंद नहीं आया और गुस्से में आकर उन्होंने लोकल ट्रेडर्स पर जो टैक्सेस लगते हैं वो भी हटा दिए। लेकिन ऐसा करने से ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज हुई, क्योंकि पहले लोकल ट्रेडर्स को टैक्स पे करना होता था, वही ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं पे करना होता था, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रोडक्ट्स थे वो सस्ते दामों में मिलते थे और कंपटीशन में भी उन्हें एडवांटेज मिलता था। लेकिन यहाँ पर लोकल ट्रेडर्स के टैक्सेस हटाने के बाद मानो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो एडवांटेज चला गया, जिसके चलते मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लगातार छोटी मोटी लड़ाइयाँ होने लगी। इसी बीच मीर कासिम का यह आरोप था कि जगत सेठ की फैमिली ने उन्हें धोखा दिया है। जगत सेठ की फैमिली ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइनेंसिंग कर रही है, जिसकी वजह से दिन ब दिन ब्रिटिशर्स स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए मीर कासिम ने जगत सेठ की फैमिली के 2 मेंबर्स माधव राय और महाराज स्वरूप चंद की गोली मारकर हत्या कर दी। एंड देन इन 1763 जगत सेठ का भी देहांत हुआ, जिसके बाद उनका एम्पायर कोलैप्स होने लगा। उन्होंने जो लैंड ओन की थी उसका भी कंट्रोल धीरे धीरे उन्होंने खो दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे जो लोन लिया था उनकी डेथ के बाद उन्होंने वो लोन रिटर्न नहीं किया, वापस चोरी कर लिया। शायद ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लोन डिफॉल्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया के राइज के पीछे 2 व्यक्तियों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। एक थे सेठ मानिकचंद और दूसरे थे विरजी वोरा, जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे ऐसे अपॉर्चुनिस्ट इंडियन बिजनेसमैन की जिन्होंने इंडिया की बिजनेस ग्रोथ स्टोरी की नींव रखी। और हम बात करेंगे कैसे अरब ने पर्शिया पर किए हुए अटैक की वजह से पूरे इंडियन बिजनेस का फ्यूचर हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो फिर मिलेंगे। Written and presented by प्रसाद लिनवे। Presented by मतलब जो बोल रहे थे वही ना। Directed and edited by Leo Fernando। Okay, so names and all everything. Research Ritam Roy and Amir. Because I also want to know the team name, especially the person who was like presenting. Right, It's very the way he was presenting, it was very soothing to the ear and it was very informative, I think very much. informative. Along with that मतलब बहुत slowly बहुत जो अच्छे से controlled वो way से बोल रहे थे ना, वही तो बात। बहुत अच्छे से चीजों को समझ में आ रहा था। Correct. Right, So hats off Prashant, it's Yes. amazing. So this is episode Now back to 1. the content. So this is episode 1 and I think ये बहुत अच्छा लगा, बहुत इंफॉर्मेटिव था। राइट, वो हमें डीपली कुछ ही वो पता कैसा था, हाँ। कैसे वो अमीर चंद क्या थे ना? मानिकचंद सॉरी जगत सेठ। तो हाँ, तो उनके पास इतना पैसा वगैरह था, उतना बाप आइडिया रे मुझे नहीं था। बाप। बाप रे। हमें मैं शेठ मानिकचंद का नाम हिस्ट्री में पढ़ी थी। मैं यही पढ़ी थी कि वो लोन देते थे और उनके साथ ही ब्रिटिश का जो भी बातें Deal हैं, and डील all है, होता ये होता था। लेकिन वो इतने अमीर थे, Yes, ये ये हमें नहीं नहीं पता पता था। था। बस नाम वगैरह बैंक सुने, की थोड़ा तरह हाई लेवल पता था। हाई लेवल पता था, बैंक की Yes. तरह। और हिस्ट्री बुक्स में उतना तो अगर कवर करेंगे तो फिर बहुत हो जाएगा। मुगल का कवर कब करेंगे, क्योंकि मुगल ही तो ज्यादा था ना हमारे हिस्ट्री में। तो वही बात था। लेकिन हाँ, मुझे मतलब अभी भी मुझे सोच के मेरा खून खौल रहा है कि ये जो ब्रिटिशर्स है इतना चीट, इतना ज़्यादा चोर है कि वो जो लोन लिए ह्यूज अमाउंट का वो वापस तक नहीं किया, डिफॉल्ट हो गया। और इसी का ही मतलब
फायदा ये लोग उठाए एक्चुअली हाँ, क्योंकि ब्रिटिशर्स। जो मीर already कासिम का सारे नाम पैसा था, लेकर के अपना खुद का ट्रेड और खुद का बिजनेस कर रहे थे, right? एक्वायर करने लग गए, फिर उसके और बाद धीरे सोचे धीरे कि उतना पैसा का रिटर्न तो करना नहीं, नहीं उस है। पैसा का अब बहुत कुछ और किसी और को दे Huge करके amount। किसी और को खरीद ले रहे खरीद हैं, ले इधर रहे उधर हैं, ऐसे अटैक कर करके रहे ही हैं, तो वो बहुत लोग कुछ बस कुछ अभी किया। अपना जो भी है पूरा बसाने लग गए इंडिया में। तो ये जो मीर कासिम का नाम है, ये मुझे पता था कि ये एक्चुअली सिराजुद्दौला जो है बंगाल का सम्राट जो थे, वो अंग्रेज़ों को बहुत रोकने की कोशिश किए थे। वो अपना जो भी एम्पायर है उनका मदद लेने की कोशिश किए, लेकिन बहुत गद्दार थे इसलिए नहीं हो पाया। फिर वो बाहर जाके अपना सेना गठन करने की कोशिश किए थे, बट मीर कासिम थे उनके दामाद एक्चुअली, और वही थे गद्दार जो सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के सामने ये कर दिए, खड़े कर दिए कि ये है। हिस्ट्री इतना हाँ, पता मुझे है, पता है ये हाँ, बहुत that's बड़ा इम्पोर्टेंट great। चैप्टर था हमारा बंगाल का हिस्ट्री, ये वेस्ट बंगाल का हिस्ट्री है एक्चुअली। एंड उसके बाद उनका हत्या कर दिया गया पलाशी का जो युद्ध है उसमें। तो मीर कासिम एक बहुत ही फालतू टाइप का आदमी था। अभी उनका जो ग्रेवयार्ड है ना मुर्शिदाबाद में, उसमें लोग जाके पेशाब करते हैं ऐसा भी अभी भी, मतलब ये करते हैं, क्योंकि उनके वजह से ही अंग्रेज पूरा मतलब आ गए 200 साल तक ऐसे 200 साल rule तक किए हैं, वही बाप थे, रे। क्योंकि सिराजुद्दौला चाह रहे थे कि ना आए, वो सोच रहे थे कि ऐसा होगा तो मुश्किल हो जाएगा, बट वो गद्दार थे। तो वो उनका जमाई थे, मतलब दामाद सिराजुद्दौला का, तो वो अपना ये करने के लिए, राजा बनने के लिए ऐसा किए थे। तो ये मुझे पता ये था, सीरियसली ये से बहुत बहुत सीरियस इशू था उस बहुत time ज्यादा पे। सीरियस इशू और था। ऐसा चीज ऐसा चीटिंग इंडिया के लिए हुआ है, और इवन बहुत सारे लोग इंडिया के ही मिले हुए थे तभी जाकर के वो लोग ऐसे आ पाए, नहीं तो मुझे लगता है ब्रिटिशर कुछ नहीं कर क्यों, हाँ पाता। क्यों मतलब अंग्रेजों को ट्रेडिंग के लिए लोग अलाउ किए। अरे मैं वही सोचती हूँ, एटलीस्ट ट्रेडिंग के लिए अलाउ करना दैट इज ओके, मतलब ओके मींस economical growth इकोनॉमिकल and all। ग्रोथ के लिए ओके, बट दैट शुड बी मींस रेगुलेटेड विद बाय सम रूल्स एंड ऑल। rules and all। वो रेगुलेशन rules नहीं क्या, था, right? कुछ भी Exactly। कोई मानने का जो नहीं जिसके था। पास पैसा था वो राजा उस और टाइम ऊपर से अगर मान लो कि अगर तुम मानिक चंद हो, मतलब मान लो तुम मानिक चंद हो, तुम बिजनेस कर रहे हो, लेकिन ये मीर कासिम जैसा लोग भी तो है जो आके उनका मार दे रहा है गोली करके, तो क्या हो रहा है ना, मतलब अपने ही बीच में अनबन नहीं हो रहे हैं, तो ब्रिटिश उनका फायदा उठा लिया। ये हुआ था एग्जैक्टली, यही होता ना, भाई भाई में अगर भाई झगड़ा में। होता तो बाहर वाले फायदा उठा लेते, वही हुआ था। सो बहुत इंफॉर्मेटिव था, हमें बहुत अच्छा लगा Let's गाइस। wait for द the मैन हु episode बिल्ट 2। इंडिया, रियली इट्स अमेजिंग। एंड ऐसा टाइप का नॉलेजेबल कंटेंट देखने के बाद ना, मतलब हम अपने में भी बहुत सारा डिस्कशन करते हैं, एंड मैं समझ सकती हूँ कि जो गवर्नमेंट सर्विस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन वो ये लोग पेन एंड पेपर लेकर के बैठ सकते हैं, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट करके वो लोग लिख सकते हैं। करेक्ट। क्योंकि कभी कभी आ जाता है ऐसा क्वेश्चन कि सीरियसली हम पढ़े नहीं है, कभी पढ़े नहीं है, अचानक से सडनली देखते हैं ओ माय गॉड ऐसा भी क्वेश्चन होता है। तो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है इसमें बहुत ज़्यादा। एंड अपने पर्सनल नॉलेज के लिए भी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया का हिस्ट्री जानना हर भारतीय का हक है। स्कूल टाइम सीरियसली, मैं अपना बात बताऊँ, स्कूल टाइम सीरियसली मैं हमेशा सोचता था ये हिस्ट्री लेकर के मैं क्या करूँगा, लेकिन सीरियसली अभी सुन करके हमें लगता है कि हाँ जरूर जानना चाहिए, इंडिया किस प्लेस में था, क्या था, कैसा था, हमें ऑफ कोर्स जानना चाहिए। तब तो जाकर के हम अपने फ्यूचर में जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्हें भी बता सकते हैं, कुछ तो हमारे पास भी होना चाहिए बताने के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। राइट, कहीं भी अगर कोई भी आपके देश के बारे में उंगली उठाए तो आप बहुत कुछ बता सकते हो कि हमारा देश क्या था, क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ। और ऊपर से अगर आप कोई अपना बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहे हो तो ये सब ड्रॉबैक्स के बारे में भी जानना चाहिए कि क्या क्या लूपहोल्स थे जो हमें नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक डिजास्टर साबित हुआ था, राइट, हमारे देश के लिए। तो मतलब अपने लिए भी पास्ट जो एक्सपीरियंस है और पास्ट जो चीज हुआ उनसे हमें सीखना है, सीख करके हमें आगे बढ़ना है। Truly amazing content, and we really enjoyed it. And please let us know how you feel about this reaction, guys. And if you love our reaction, please do subscribe, and also please click on the like button to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then, bye.